دنوں وسیع و عریض مکان سے ملحق سرسبز لان پر بیٹھے ہم کافی پینے میں مصروف تھے اور ہم سے کچھ دور پورچ کے کنارے ایک ملازم مستعد کھڑا ہوا تھا یا ہم میں سے کسی کو کسی چیز کی فرصت ہو تو وہ فوری طور پر فرمائش کی تکمیل کر سکے۔ پورچ میں آگے پیچھے ہم تینوں کی گاڑیاں موجود تھیں۔ ہمارے علاوہ وہاں ملازمین بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود پوری عمارت پر ایک پرہول سا سناٹا طاری تھا جو ہمیشہ سے جیوا ہاؤس کا طرح امتیاز رہا تھا، لیکن اس وقت وہ سناٹا مجھے کاٹ رہا تھا۔ کوئی اجنبی وہاں آ جاتا تو اسے سب سے پہلے یہی احساس ہوتا کہ اس عمارت میں کوئی سنگین واردات رونما ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، اور آنے والے لمحوں کی اس دہشت نے عمارت کے باسیوں سے خوشی کی ہر امنگ چھین لی ہے۔ باقاعدہ اجلاس نہ ہوتا تو اس کاش کا ایک دور ضرور چلتا۔ میں نے ماحول کے بوجھل پن کو دور کرنے کے لیے دعوت آمیز لہجے میں کہا، نہیں بابا۔ طارق بوکھلا کر بولا، جہانگیر ڈسپلن کے معاملے میں بہت سخت ہے، اسے شبہ بھی ہو گیا تو بس بپھر ہی جائے گا۔ نادر نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی اور بیت کی کرسی میں پہلو بدلتے ہوئے الجھن آمیز لہجے میں بولا، پتہ نہیں وہ کہاں رہ گیا، 6 بجنے والے ہیں، نہ 1 منٹ آگے نہ پیچھے، وہ وقت کا پابند ہے، ٹھیک 6 بجے آ ہی جائے گا۔ طارق نے غیر ارادی طور پر اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، ابھی تو 2 منٹ باقی ہیں۔ میں طارق کی طرف متوجہ ہو گیا اور چند ثانیوں تک پرخیال انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہنے کے بعد بولا، میرا خیال ہے کہ وہ ہم سے بھاگتا ہے، ہمارے ساتھ کم سے کم وقت گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، طارق نے اعتراف کیا۔ وہ ہم سے الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتا ہے، شاید اس لیے کہ وہ ہمارا سربراہ ہے۔ سربراہ ہونے سے پہلے وہ ہمارا دوست ہوا کرتا تھا، میں نے انہیں یاد دلایا، لیکن اب یاری دوستی کو وہ بالکل فراموش کر بیٹھا ہے۔ میرا بس چلے تو اسے ہلکی سی سرزنش ضرور کروں تاکہ اسے ماضی کے رشتے یاد آ جائیں۔ سرزنش؟ نادر خان یوں ہنسا جیسے انہیں کوئی احمقانہ بات کہہ دی ہو، مگر کس بنا پر؟ محض اس لیے کہ اجلاسوں میں وہ عین وقت پر پہنچتا ہے، ہم سے گپ شپ میں وقت برباد نہیں کرتا اور میٹنگ ختم ہوتے ہی واپس چلا جاتا ہے۔ مشکل یہی ہے، طارق گہرا سانس لے کر بولا، اس کا رویہ ہمیں ضرور چبھتا ہے، لیکن اس کی کس کوتاہی کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی۔ ہم اس کے بارے میں صرف اسی قدر جانتے ہیں جتنا کام کی حد تک ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے سر پر اور بھی فکریں سوار رہتی ہوں۔ عین اسی وقت سیاہ رنگ کی ایک دمکتی ہوئی سیلون کار کھلے ہوئے پھاٹک میں داخل ہوئی اور پورچ میں پہلے سے موجود گاڑیوں کے پیچھے رک گئی۔ میرے ساتھ ان دونوں نے بھی بیک وقت اپنی ریسٹ واچز پر نگاہیں ڈالیں اور ان کے چہروں پر مایوسی پھیل گئی کیونکہ جہانگیر روایت کے مطابق بر وقت پہنچا تھا۔ میں انہیں چھیڑ ضرور رہا تھا، لیکن ڈسپلن کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے کرسی چھوڑ دی اور دونوں نے بھی میری تقلید کی۔ ہم لان سے برآمدے میں پہنچے تو دراز قامت جہانگیر بھی لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہم سے آن ملا۔ ہیلو ایوری بڈی، اس نے ہاتھ لہرا کر خوش دلی سے کہا۔ وہ دونوں ہوش ہلا کر مسکرائے اور میں نے دل پر جبر کر کے ہونٹوں کو قدرے پھیلا لیا۔ اس کی طرف سے بڑے پن کا اظہار مجھے ہمیشہ سے کھلتا تھا۔ وہ ہم میں سے تھا، برے دنوں میں ہم چاروں ہم نوالہ اور ہم پیالہ رہے تھے، لیکن ہم سے اپنے احکامات کی تعمیل کراتے کراتے وہ خود سرسا ہو گیا تھا، جیسے پیدائشی طور پر وہ ہم پر مسلط رہا ہو۔ عمارت کے داخلی دروازے پر 2 قوی الحبسہ اور مضبوط آدمی مجسموں کی طرح ایستادہ تھے۔ ان کے ہاتھ جیبوں میں تھے جو بادی النظر ہی پھولی ہوئی اور وزنی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن ہم میں سے کسی کے لیے بھی وہ نئی بات نہیں تھی، لہٰذا ہم سب ان کے قریب سے گزر کر اس پرشکوہ عمارت میں داخل ہو گئے۔ داخلی حال میں جہانگیر ہم سے آگے ہو لیا جیسے ہمارے لیے وہ عمارت اجنبی رہی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اسے ایک گندی سی گالی دی، لیکن عملہ نے ایک مجبوراً مقتدی کی طرح اس کے پیچھے نادر اور طارق کے ساتھ چلتا ہوا چند راہداریاں گزرنے کے بعد جیوا ہاؤس کے اس مخصوص کمرے میں پہنچ گیا جہاں ایک بڑی سی میز کے گرد صرف 4 ہی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سب کی نشستیں مخصوص تھیں، لہٰذا ہر ایک نے کسی تکلف یا اہتمام کی بغیر اپنی جگہ سنبھال لی۔ تمہاری وجہ سے یہ اجلاس 1.5 منٹ کی تاخیر سے شروع ہو رہا ہے۔ اپنی نشست سنبھالنے کے بعد میں نے اپنی ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے جہانگیر کو مخاطب کیا، مجھے جتانے کی ضرورت نہیں ڈینی۔ اس کا لہجہ خشک اور سنجیدہ تھا۔ 6 بجے ہمیں یہاں پہنچنا تھا اور میں بر وقت آ گیا تھا۔ اجلاس کی ابتدا یا انتہا کے بارے میں کسی کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میں اپنی ذمہ داریاں خوب جانتا ہوں۔ اس کا جواب ضرورت سے زیادہ تلخ تھا، لیکن وہ جو کچھ کہہ رہا تھا بظاہر درست ہی تھا۔ مجھے مجبوراً خاموشی اختیار کرنا پڑی اور میں اپنی جیب ٹٹول کر اپنے دل کو تسلی دینے میں مصروف ہو گیا۔ کمرے کی فضا پرسکوت طاری رہا۔ نادر اور طارق جہانگیر کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ بے پرواہی کے ساتھ سگریٹ سلگانے میں مصروف تھا۔ کچھ عرصے سے ہماری سرگرمیاں مسلسل روبائے زوال ہیں۔
जहांगीर ने सिगरेट का गहरा कश लेकर धुआं फिजा में बखेरते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जिसे एक एक लफ्ज सोचकर बोल रहा हो। मेरा जी चाहा कि खुलकर इस इजलास का मकसद बयान करके उसका भरम तोड़ दूं, लेकिन मेरे लिए अपने ही बनाए हुए इस हसार को तोड़ना मुमकिन नहीं था। मामलात की बागडोर बज़ाहिर उसके हाथ में थी और मुझे एक मामूली मातहत की तरह उसकी कही हुई हर बात पर तवज्जो देनी थी। छोटे छोटे ग्रुप ट्रेड में आ गए हैं, नादिर खान मुदाफाना लहजे में कह रहा था। वो जिस मार्जिन पर काम कर रहे हैं वो हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। हमने मजबूरन अपनी सरगर्मियां महदूद की हैं, लेकिन हम पॉलिसी से इनहराफ नहीं कर सकते। लोगों को रास्ते से मैंने बोलना चाहा, लेकिन जहांगीर शायद इस रोज़ हाथ तौर से मेरी काट पर तुला हुआ था, तो मेरा फिक्रा पूरा होने से पहले ही बोल पड़ा। जो हो चुका उसे भूल जाओ। गनीमत यह है कि इस बार उसका लहजा नर्म ही था। हम यहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए जमा नहीं हुए। मैं इस मीटिंग की वजह जानने का मुंतज़िर हूँ। उसके खामोश होने पर मैंने गंभीर लहजे में कहा, हमें काम आगे बढ़ाना है। जहांगीर ने बारी बारी हम में से हर एक का जायज़ा लेते हुए पुरअज़्म लहजे में जवाब दिया। लेकिन तरीका? नादिर खान ने दिलचस्पी के साथ सवाल किया। इस वक्त भी शहर के सिर्फ वही अड्डे हमसे माल ले रहे हैं जिन्हें थोड़ी सी दामों के मुकाबले में अपनी साख और राजदारी ज़्यादा अजीज है। हम एक नई चीज़ बाजार में लाएंगे। जहांगीर का लहजा तजस्सुस आमेज़ था। अफीम, चर्स, शराब, अरके हशीश, मारफेन और पैथिडीन सभी बाजार में हैं। तारिक ने पहली बार जुबान खोली। देसी माल की भी सैकड़ों किस्में हैं, सिर्फ 20 के नाम गिनाते चलो। जहांगीर ने उसे घूरते हुए कहा। उसका लहजा सरासर तादीबी था। ओ सॉरी, तारिक माजरत वाहाना लहजे में जल्दी से बोला। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया। जब कहने के लिए कुछ ना हो तो खामोश रहना बेहतर होता है। जहांगीर गुर्राया, लहजा काबू में रखो। इस बार मैं खामोश ना रह सका। तारिक मुहावरतन कह रहा था, तुम्हें दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं। जहांगीर बिगड़ गया। ये मेरी और तारिक की बात है। मैंने बेपरवाही से शाने उचकाए और उसी लहजे में कहा, फिर हमारा यूँ जमा होना शायद बेसूद है। हम बाहमी अफहाम तहफ़ीम के लिए जमा होते हैं और एक दूसरे की गलतियों की निशानदही हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है जिससे रोगर्दानी नहीं की जा सकती। खामोश रहो। वो मुझे घूरते हुए बोला। उसकी आवाज़ से गराहट ख़त्म हो गई थी, लेकिन लहजे में तलही बदस्तूर बाकी थी। मुझे सबक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। ये ना भूलो कि मैं तुम लोगों का सरबराह हूँ। मैं मानता हूँ। मैंने सीने पर हाथ रख कर सर को कदरे हम देते हुए गहरी संजीदगी के साथ कहा, मगर माय डियर सर, अपनी सरबराही का वकार कायम रखो। तुम किसी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर नहीं हो। बिजनेस मीटिंग में हमें जिम्मेदारी के साथ हिस्सा लेना चाहिए। उसने कदरे तवक्कुफ के बाद धीमी आवाज़ में कहा, बेतुल बातें वक्त बर्बाद करती हैं। हम में से कोई भी दानिस्ता वक्त ज़ाया नहीं करता। मैंने भी मसालेहाना लहजा इख्तियार कर लिया। असल बात यह है कि जब हम एक दूसरे की नीयत पर एतमाद करते हैं तो हमें आपस में तंज़ और तज़हीक का रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। छोड़ो यार, तारिक मुझसे मुखातिब होकर बोला। छोटी मोटी बातों की तो अब आदत सी हो गई है। मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानता। मैं भी झगड़ा नहीं कर रहा। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम बहुत फराग दिल हो, तुम्हें कोई बात बुरी नहीं लगती, लेकिन मुझे यार नादिर को बुरा महसूस हो सकता है। मैं पहले भी कई बार जुबान खोलते खोलते खामोश रह गया। हमने बाहमी एतमाद की फ़िज़ा बरसों में कायम की है और मैं उसे बरकरार देखना चाहता हूँ। गोया ग्रुप का सारा दर्द तुम्हारे जिगर में है। जहांगीर गुस्से के बावजूद बेबसी के साथ हंस पड़ा। मैं मामलात को बिगाड़ रहा हूँ। ये मनसब मेरे पास भी रहा है। मैंने उसे याद दिलाया। मैं जो कुछ कहता हूँ नेक नीयती के साथ कहता हूँ। जहांगीर मेरे छुपते हुए दिमाग पर बल खाकर रह गया, मगर मुंह से कुछ ना बोला। शायद तुम किसी नई चीज़ का जिक्र करने वाले थे, नादिर खान ने कहा। वो बहुत ज़ेरी का आदमी मालूम होता था और तलहियों को बर वक्त टालने में खासा माहिर था। नई चीज़? जहांगीर अपनी झल्लाहट को पुरहयाल लहजे में छुपाते हुए बड़बड़ाया। हीरोइन हमारी मंडी के लिए एक अछूती चीज़ होगी, लेकिन ये नाम तो नया नहीं। तारिक ने मुदाफाना लहजे में कहा। हाँ, जहांगीर ने पहली बार उस पर किसी बरहमी का इजहार किए बगैर कहा, लेकिन मुकामी ट्रेड के लिए ये नाम तकरीबन नया है। हीरोइन जहाँ जहाँ पहुँची उसकी बेपनाह मांग है, लेकिन उसकी रसद नाकाबिले ज़िक्र है। उसकी आलमी डिमांड और सप्लाई में एक ज़बरदस्त हला है। फिर हमारी मंडी के लिए ये अछूती चीज़ होगी। उसके मुँह मांगे दाम मिलेंगे। मुँह मांगे दाम? नादिर खान कोनियों के बल मेज़ पर आगे झुकाया। तुम जानते हो कि हमारे यहाँ नशा करने वाले माशरे के किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं लोग? हमारा माशरा आसमान से नहीं उतरा नादिर खान। जहांगीर ने सिगरेट का कश लेकर कहा। अमेरिका के खुशहाल घरानों से बांग्लादेश के नंगे भूखे दहकानों तक वही लोग मंशियात का सहारा लेते हैं जो ना आसूदा हो। मगरिब में महरूमी का एहसास कुछ और है, यहाँ कुछ और। इसरत ज़दा तबके के लोग कुछ देर के लिए हयाली जन्नत खरीदने के लिए ज़्यादा फ़याज़ी से खर्च करते हैं।
मगर यहाँ सस्ते नशे बआसानी दस्तयाब हैं, लोग उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें सस्ती चीज़ों से हटाकर इधर राग़िब करना इतना आसान ना होगा, नादिर खान ने कहा। जहांगीर मायनेहेज़ अंदाज में मुस्कुराया। मेरी बाकायदा ब्रीफिंग हुई है, मुझे कामयाबी का पूरा यकीन है, शायद तुम्हें समझाना मेरे लिए दुश्वार साबित हो। हम बतदरीज अलग होते हुए दोबारा क्यों इस तरफ राग़िब हों? मैंने एतराज़ किया। इसलिए कि ये हमारी ज़रूरत है, जहांगीर ने बराह रास्त मेरी आंखों में देखते हुए मजबूत लहजे में कहा। नहीं, मैंने अपने सर को नफ़ी में जंबिश दी। मैं नहीं मानता आज के हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। हम हासिल ज़राए के मालिक हैं, इन चक्रों में पड़े बगैर भी अपनी ज़रूरियात और ज़िम्मेदारियाँ आसानी से पूरी कर सकते हैं। तुम शायद 7 बरस पहले के हालात से आज का मुवाजना कर रहे हो। जहांगीर के लबों पर जहर हंद उभर आया। इस वक्त हम सब बेसरो सामान थे, हमने अपनी खुशी से ये धंधा शुरू किया और आज हम इस पर मजबूर हैं। तो ये ऊपर की तजवीज़ है? मेरा लहजा यकमैक बेजान हो गया। मैं इतना हरीस नहीं हूँ। जहांगीर की आवाज़ पाट थी। उस कुर्सी पर बैठकर मैं किसी की नुमाइंदगी करता हूँ, उसके हुक्म की खुद तामील करना और तुमसे कराना मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए तो किसी बहस की ज़रूरत ही नहीं थी। मेरी आवाज़ में शिकस्त और बेबसी के असरात सिमट आए और मैं कुर्सी की पुश्तगाह से टिक गया। गलती तुम तीनों की है कि मेरी बात पूरी होने से पहले अपने इतराज़ात ले बैठे। जहांगीर के लहजे में थोड़ा सा गरूर सिमट आया। हमें यहाँ हीरोइन की मार्केट पैदा करनी है। टारगेट क्या है? नादिर खान ने सवाल किया। 3 करोड़ सालाना खालिस मुनाफा देना है, और वो भी फ़िलहाल। जहांगीर ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर साफ आवाज़ में कहा। तीनों के मुंह से तहैयर आमेज़ आवाज़ें निकल पड़ी। स्टॉक में जो कुछ मौजूद है उसे फ़ौरन तलफ करा दो। जहांगीर कहता रहा। मेरे पास सैंपल आ गए हैं, 1000 पैकेट मार्केट में खलबली मचा देंगे। स्टॉक उन्हें पुणे बेच दिया जाए? नादिर खान ने सवाल किया। मैं शायद इसलिए तुम लोगों का सरबराह बनाया गया हूँ कि इतनी बात में बगैर किसी वजाहत के समझ गया। जहांगीर हंसकर बोला। मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास हादसा स्टॉक है, तुम नाक के सामने देखते हो, लेकिन ऊपर वाले लंबी मनसूबा बंदी करते हैं। हम लोग मार्केट में डाल नहीं देंगे तो दूसरों को कमाने का मौका मिलेगा। कहत में दाम बढ़ा देंगे, ग्राहक बौखला जाएंगे और कोई ताड़ तोड़ तलाश करेंगे। उधर तुम आदमी मुफ्त और सस्ते दामों सैंपल लेकर निकल पड़ेंगे, उन्हें हर तरफ हाथों हाथ लिया जाएगा। तजुर्बा बताता है कि हीरोइन नए आदमी को 6-7 दिन में और पुराने नशाबाज को महज 4 दिन में अपना आदी बना लेती है। और इस वक्त तक हमारे पास कमर्शियल लाट अला आ चुकी होगी जिसे बाजार में हाथों हाथ लिया जाएगा। तारिक तहसीन आमेज़ लहजे में बोला। माल हाथ खींच कर दिया जाएगा। जहांगीर धीमी आवाज़ में बोला। एक दफ़ा मार्केट पैदा हो जाए तो हर एक माल मांगेगा, मगर हमें दामों को अपनी सतह पर ले जाना है। मुश्किल ये है कि एक्सपोर्टरों से हमें राब्ता कायम करने की इजाज़त नहीं, वरना हम चर्च का स्टॉक ज़ाया करने की बजाय उन्हें फ़रोख्त कर सकते हैं। माल नुकसान से भी बच जाएगा और मुकामी मार्केट बहरान की जद में आ जाएगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी सलामत रहेगी। नादिर खान उस सरीह नुकसान से हर सूरत में बचना चाह रहा था। ऊपर वाले माल वापस लेकर खुद भी उसकी बैरून मुल्क निकासी का बंदोबस्त कर सकते थे, मगर वहाँ से बराह रास्त इतलाफ का हुक्म मिला है। लंबा खेल है, मैं बड़बड़ाया। मैं अब कुछ समझ चला हूँ। हमारे पास कराची और मज़ाफ़ात की 4 माह की ज़रूरियात का ज़हीरा ज़रूर होगा। उसकी तबाही का मतलब है कि ऊपर वाले आदमी मार्केट का भी जायज़ा ले चुके हैं। उधर बहरान आया तो पहले ही बल्ले में वारे के न्यारे हो जाएंगे। ओह खुदा! नादिर अपनी पेशानी रगड़ते हुए बोला। ज़रूर यही बात है, ज़रूर यही बात है। और जो ऊपर फैसला होता है बहुत सोच समझ कर होता है। हमारे लिए इसमें सर खपाना बेसूद है। बस जो हुक्म मिले आंखें बंद करके उस पर अमल करना चाहिए। आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोलकर माय डियर नादिर खान, जहांगीर ने कहकहा लगाते हुए कुर्सी छोड़ दी और हम तीनों भी उठ गए। जहांगीर कुर्सी से उठकर सीधा एक कदादम फौलादी तिजोरी की तरफ बढ़ गया। मैं टहलता हुआ जहांगीर की कुर्सी की तरफ आया, फिर मेरा दाहिना हाथ फुर्ती से जेब से बाहर आ गया। नादिर खान तारिक से कुछ बात करने में हमनक था। वो दोनों कुछ इस तरह खड़े थे कि उनकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं थी और जहांगीर हमारी तरफ पुश्त किए तिजोरी खोलने में मसरूफ़ था। मैं गर्दोपेश का जायज़ा लेकर फुर्ती से नीचे झुका और फिर बिजली की सी सिरत से मेरा दाहिना हाथ मेज़ के नीचे रेंग गया। लहजा भर बाद में टहलता हुआ उन दोनों के करीब पहुंचा तो ना सिर्फ मेरे हाथ खाली थे बल्कि जेब भी कदरे हल्की हो चुकी थी। डैनी ठीक ही कह रहा था, नादिर खान पुरजोश लहजे में तारिक से कह रहा था। मालूम होता है कि चर्च के बाद अब हीरोइन का तूफान आने वाला है। ऊपर जो लोग भी हैं वो वाकई बेदार मगज़ हैं। चर्च का मुकाबला बढ़ गया तो हीरोइन ले आए, लेकिन समझ में नहीं आता कि माल कहाँ से आएगा। वैसे वो कमाने के फ़न में ताक मालूम होते हैं। मंसूबा बनाया है तो माल भी फ्राहम करेंगे। चलो अब तक हीरोइन का नाम ही सुनते रहे हैं, अब उसका धंधा भी कर लेंगे, तारिक ने खुशदिली के साथ कहा।
इसी असना में जहांगीर ने फौलादी तिजोरी से पॉलीथीन के 3 हल्के फुल्के थैले निकाल लिए थे, जिनके हुजम के मुकाबले में वजन ना होने के बराबर मालूम हो रहा था। ये किसी हिसाब में नहीं होंगे, जहांगीर ने एक एक थैला हमारे स्पुर्द करते हुए कहा। फिर खास तौर पर नादिर खान की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, चर्च का सारा स्टॉक फौरन ज़ाया करना होगा। इसके लिए समंदर सबसे बेहतर रहेगा। ऊपर वालों को हमारी पल पल की खबर रहती है। ये काम पहले फुर्सत में होना चाहिए। जिसने भी लालच किया वो जवाबदेह होगा और बेमौत मारा जाएगा। तुम फिक्र ना करो, जो बात तय हो गई उस पर हर्फ ब हर्फ अमल होगा। नादिर खान ने पूरी संजीदगी के साथ उसे यकीन दिलाया और थैले में भरी हुई पुड़ियों का जायजा लेने लगा। खुले बाजार के अलावा यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को ना भूलना, जहांगीर ने चौंक कर कहा, जैसे से कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। आज तक किसी ने भी उन इदारों पर बराह रास्त तवज्जो नहीं दी। इस महाज पर मुनज़्ज़म तरीके से मेहनत की गई तो कामयाबी के रोशन इम्कानात हैं। ये काम मैं करूँगा। तारिक ने पेशकश की। पार्ट टाइम की मुलाजमत की तलाश में बेहतर तालिब इल्म मेरे पास आते रहते हैं। इस वक्त भी एक लड़का काम कर रहा है, उसी को टटोलने से इब्तदा करूँगा। वो शायद यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तुम लोग जिस तरह चाहो काम करो, लेकिन ये ख्याल रहे कि ऊपर वालों के नज़दीक सारी अहमियत नताइज की है। जहांगीर ने याद दिलाया, बेसूद कोशिशों पर किसी की होशनोदी मैसर न आ सकेगी। आपस में बातें करते हुए हम राहदारी में निकल आए, जिसके सिरे पर जेवा हाउस का वो मुलाजिम खड़ा हुआ था जिसने हमें लान में काफ़ी सर्व की थी। निकासी के रास्ते पर दोनों मुहाफिज बदस्तूर अपनी जेबों में हाथ डाले पत्थर के बेजान मुजस्सिमों की तरह अटल खड़े हुए थे, जैसे उन्हें अपने फ्राइज के अलावा दूसरी किसी बात से कोई दिलचस्पी ना हो। फिर चारों गाड़ियां यके बाद दीगरे वहां से रवाना हो गई। मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए दिल ही दिल में इस सिचुएशन के बारे में सोचने लगा जो जहांगीर से फ़ोन पर मेरी गुफ्तगू के नतीजे में पैदा हो सकती थी। हम में से किसी का भी माजी काबिल फ़हर नहीं था। जहांगीर अपने ज़माने का छटा हुआ बदमाश था। 3 कत्ल उसकी ज़ात से मंसूब किए जाते थे, लेकिन तमाम तशरीहात के बावजूद किसी FIR में उसका नाम न आ सका। पुलिस ने अपनी रवायती तफ्तीश के बाद दौरान उसे हिरासत में ज़रूर लिया, लेकिन जिस्मानी तशद्दुद का हरबा आजमाने की जुर्रत कोई ना कर सका। बदमाशों के बारे में खराबी यही थी कि उनका कीना मिसाल होता था। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि कोई नामी ग्रामी शख्स थाने की ज़्यादतियों को कानूनी तकाज़े समझकर हंता पेशानी से भूला हो। इसलिए मार धाड़ के सारे पेशावराना नुस्खे छोटे मोटे चोर अचकों के मुकद्दर में आते थे, जिनके संगदिलाना मुजाहरे से थाने में आप हंसने वाले शुरफा इबरत पकड़ते थे और साहिबानी कज़ा व कदर के लहजों में तलही पैदा होने से पहले ही नजरानी का एहतमाम करके अपनी चमड़ी सलामत निकाल ले जाने में कामयाब हो जाते थे। जहांगीर जहल मगर दलेर आदमी था और मुझसे अपनी दोस्ती पर फख्र किया करता था। कराची में जब से हमारा साथ हुआ था, हमने हर अच्छे बुरे मौके पर पूरी तरह एक दूसरे का साथ दिया था। जहांगीर अक्सर मेरे अमली शोबदों के गुण गाता रहता था। उसका ख्याल था कि मैं लाउबाली तबीयत के बावजूद अपने कसरती जिस्म के हर उज़्व से पूरी तरह काम लेता हूँ। जहानत, मकारी और चर्ब ज़बानी के सिलसिले में वो तहे दिल से मेरी बालादस्ती का कायल था, क्योंकि उसके बरक्स मुझे कॉलेज तक तालीम हासिल करने के मौके मिले थे जो मैंने अपनी उलझन के सबब ज़ाया कर दिए। और कॉलेज की फ़िज़ा में 1.5 साल गुजारने के बाद कोई सेंध लिए बगैर जुराइम की दुनिया की तरफ चला आया। जहांगीर की मार्फत में नादिर खान और तारिक से मुतारिफ हुआ। नादिर खान आज़ाद इलाके में ज़रई ज़मीनों का मालिक था जहाँ भंग काश्त होती थी और वो उससे आला किस्म की चर्स कशीद करके सरहद पार फ़रोख्त किया करता था। फिर उसका दिल अपने अफ़गान खरीदार की भतीजे पर आ गया। वो बहाने तराश कर बार बार उसका मेहमान होने लगा और आहर लड़की को अपनी तरफ मायल करने में कामयाब हो गया। राज़ो न्याज बढ़ते रहे और एक रात नादिर खान लड़की को साथ भगा कर लाया। उसे मालूम था कि इस तरह उसने एक दलेर ख़ानदान को अपने लहू का प्यासा बना लिया है, मगर वो मोहब्बत में अंधा हो चुका था। लड़की को सीधा कराची लाया और इससे निकाह कर लिया। लड़की के मोश्तल रिश्तेदारों ने नादिर खान के गांव पर धावा बोल दिया। ज़बरदस्त तसादम हुआ, फसलें जला दी गईं, तरफैन के 2-2 आदमी मारे गए, कई मकान नजर आतिश कर दिए गए और नादिर खान इन हालात से बेपरवाह कराची में रोपोश होकर अपनी मोहब्बत की तिश्ना ख्वाबों की तकमील में खोया रहा। असासा ख़त्म होने को आया तो उसने चर्स फरोशी का सहल रोज़गार इख्तियार कर लिया। तारिक बज़ाहिर शरीफ और सादा लो नजर आता था, लेकिन अपने दौर का कामयाब तरीन जालसाज था। अपनी लंबी लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों की मदद से पेचीदा तहरीर और दस्तखतों की ऐसी मुकम्मल नकल करता था कि उससे असल से अलग करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन उसी के साथ वो काहिल वजूद भी वाक़या हुआ था। एक आध बार लंबा हाथ मार कर महीनों ऐश करने का आदी था और कमाल की बात यह थी कि जालसाजी के इल्ज़ाम में कभी नहीं पकड़ा गया था। अलबत्ता बज़ाहिर कोई रोज़गार न होने के बावजूद खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की बना पर दोबारा चोरी के बेबुनियाद शोबे में हवालात की सैर कर चुका था।
لیکن ان تینوں کے برعکس میرا ماضی قابل فخر نہ ہونے کے باوجود المناک ضرور تھا۔ میں اپنے والد مرحوم کی دوسری بیوی کی اکلوتی اولاد تھا۔ میں نے جس عثرت زدہ اور پراگندہ ماحول میں ہوش سنبھالا، اس کی بنا پر ہمیشہ یہ سوچتا رہا کہ محدود ترین آمدنی اور چھوٹے سے بوسیدہ گھر کی موجودگی میں وہ کیا مجبوری رہی ہوگی جس کی بنا پر والد صاحب نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا۔